Assalamu alaikum. Today that our topic is thyroid gland. As you know, thyroid gland interior triangle of neck में पड़ा हुआ होता है. ठीक है, मैं इसकी डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ एनाटमी और इजीली गो थ्रू हम करते हैं इस चीज़ को. इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में थायराइड है, दैट इज़ इनक्लोज बाय प्री ट्रैकियल फेशिया. एक जो इसका फेशिया है, और जो प्री ट्रैकियल फेशिया है, लकीली और अनलकीली व्हाटसोएवर, इट्स अ पार्ट ऑफ और इट्स अ फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया. ठीक है, अब ये डीप सर्वाइकल फेशिया की जो कंटिन्यूशन जो थायराइड को सराउंड करती है, एक और बात ये है इस चीज़ की इम्पॉर्टेंट कि लेट सपोज ये ट्रैकिया है, इसकी सेकंड थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग ये है, और इसके सामने पड़ा हुआ हमारे पास थायराइड ग्लैंड जिसको सराउंड किया हुआ है प्री ट्रैकियल फेशिया ने, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ द डीप सर्वाइकल नर्व. अब ये थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के साथ एक लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है. दैट लिगामेंट इज आल्सो द कंडेंसेशन ऑफ प्रीट्रैकियल फेशिया, और उस कंडेंसेशन का नाम होता है बेरीज लिगामेंट, द लिगामेंट दैट जॉइंस द थायराइड with the trachea. It has blood supply. It has two lobes. We have the right lobe, we have the left lobe, and both are joined by isthmus. Isthmus के ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ एक प्रोजेक्शन रेज करती है, दैट इज द pyramidal lobe. It has blood supply. It has superior blood supply, middle and inferior. Superior, that is superior thyroid artery, that is a branch of the external carotid artery. Inferior thyroid artery, it is a branch of the thyrocervical trunk. Thyrocervical trunk, that is further the branch of the subclavian artery, that is the branch of the thyrocervical, that is the branch of the internal thoracic artery. And the last artery is thyroid ima artery. The thyroid ima artery is maybe, it can be a branch of the arch of aorta, or it can be a branch of the brachiocephalic trunk. Venous drainage, it drains through three veins, that is again, let's suppose if it is thyroid, it drains through superior thyroid vein, middle thyroid vein, and inferior thyroid vein. Superior and middle thyroid veins, they drain into the internal jugular vein, and the inferior thyroid vein, it drains into the directly into the brachiocephalic trunk. Brachiocephalic trunk. लिम्फेटिक्स ऑब्वियसली इट इज़ इन नेक में है चूँकि, तो इसकी लिम्फेटिक्स क्या होंगी, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. इसके नर्व्स इंपॉर्टेंट है, दो नर्व्स इंपॉर्टेंट है. एक है हमारे पास रिकरेंट लेरिंजियल नर्व. रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सप्लाई ऑल मसल्स एक्सेप्ट वन. एक्सेप्ट कौन सा, क्रिकोथायरॉयड. क्रिकोथायरॉयड दैट इज़ द एडक्टर मसल. इसके अलावा सब मसल्स को सप्लाई करती है. प्लस इट आल्सो, इफ दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, it supplies the sensory supply below the vocal cords. Recurrent laryngeal nerve supply the sensory supply. And the second nerve that is important is external laryngeal nerve, and it supplies only one muscle जो कि recurrent ने छोड़ दिया था, cricothyroid muscle. And third one is internal laryngeal nerve. One more thing to know, these all are the branches of the vagus nerve, 10th vagus nerve. External and internal, these are further branches of superior laryngeal nerve. होता क्या है कि वेगस एक देती है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और दूसरा देती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. ठीक है, सुपीरियर के आगे फर्दर दो ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. इंटरनल का मैंने यहाँ इसलिए लिखा है बिकॉज इंटरनल गिव्स द सेंसरी सप्लाई to the portion above the vocal cords. Okay, now we have here the synthesis of thyroid hormone. How thyroid hormone is synthesized: it traps the iodide ion, then it oxidizes iodide ion into iodine, then iodine binds to tyrosine, and then there is copulation. जब वो bind करता है iodine, when it binds to tyrosine, it becomes monoiodotyrosine, and sometimes when two iodine binds tyrosine becomes diiodotyrosine. तो एक monoiodotyrosine एक डाईआयोडोटायरोसिन के साथ मिलके बना देता है T3, और दो डाईआयोडोटायरोसिन मिलके हमारे पास बना देते हैं T4. मोस्टली हमारे पास T3 ही एक्ट करता है, और अगर T4 है तो T4 T3 में कन्वर्ट होकर T3 एक्ट करता है. T3 बाइंड करता है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, एंड देन इट सर्कुलेट्स.
अगेन व्हेन यू वांट टू नो कि थायराइड का मसला हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसकी हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं. द थिंग्स दैट वी इन्वेस्टिगेट इज़ TFTs, and in TFTs what we have TSH, thyroid stimulating hormone, we have T3, we have T4. The normal value of TSH as stated by Bailey and Love, it is TSH की है 0.3 to 3.3 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. T3 की है 3.5 to 7.5 माइक्रोमोल पर लीटर. एंड T4 की है 10 to 30 नैनोमोल पर लीटर. इनकी वेरिएशंस, इनकी रेंजेस की वेरिएशंस हमें बहुत कुछ बताती हैं. लाइक एज यू कैन सी हियर, if a person is euthyroid, all of the three tests will be normal. लेकिन if the person is thyrotoxic, मतलब उसका थायराइड हार्मोन ज़्यादा, T3 T4 ज़्यादा होंगे, TSH अनडिटेक्टेबल. ऑब्वियसली TSH कम हो जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू. मेक्सिडेमिक स्टेट में TSH will be high because it is a hypothyroid state. TSH will be high, T4 T3 will be low. Suppressive T4 therapy में obviously suppressive T4 therapy है in which T4 T3 will be high and TSH will be low. T3 टॉक्सिसिटी, T3 की टॉक्सिसिटी है तो इसका मतलब ये कि T3 ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है. तो T3 हाई होगा, T4 नॉर्मल होगा और TSH विल बी अनडिटेक्टेबल. एक इसकी और डिजीज़ स्टेट होती है दैट इज़ सिक यूथायराइड सिंड्रोम. उस पर्सन का TSH सप्रेस्ड होता है और T4 T3 उसके TSH के मुकाबले में नॉर्मल होता है, लेकिन ओरिजिनल नॉर्मल रेंज से कम ही होता है. सो इट इज़ लो T3 T4 एंड सप्रेस TSH. इट्स मोस्टली इन इंटेंसिव पेशेंट सेटिंग, इंटेंसिव यूनिट सेटिंग्स पेशेंट्स में सिक यूथायराइड सिंड्रोम होता है. ये हम लोगों ने बेले से कर लिए हैं. नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, देज आर द ऑटो एंटीबॉडीज़. मोस्टली हमने पढ़ा था फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी की बुक में भी, एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन दे आर फाउंड इन हाशिमोटोज डिजीज़. एंड हम ट्रैप टेस्ट करते हैं ग्रेव्स डिजीज़ में फाइंड आउट करने के लिए थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ इन ग्रेव्स डिजीज़ के वो एंटीबॉडीज में बताती हैं कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेव्स डिजीज और नॉट. अल्ट्रासाउंड स्कैन इज आल्सो गोल्ड स्टैंडर्ड हियर. वी डिफरेंशिएट सॉलिड मास फ्रॉम द सिस्टिक वन एंड आल्सो वी आइडेंटिफाई कि अगर पैराथायरॉयड एडिनोमा है या लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है भी कि नहीं. CT scan is used in the case of staging and to get to know if there is any malignancy or not. और इसका malignancy का extent क्या है, जैसे हमने hepatobiliary system में भी extent of the malignancy देखा था. Isotope scanning technetium-99 is used. It is also given टू अ पर्सन और उसका थायराइड जो ग्लैंड है वो उसे अब्जॉर्ब कर देता आयोडीन को. इन दिस प्रोसीजर इज सेम लाइक रेडियो एक्टिव आयोडीन इनटेक. ओके. और टेक्नीशियम इज गिवन टू द पेशेंट एंड द थायराइड follicles uptake them and they emit radiation which are detected by the scintigraphy camera. Thyroid scanning is used to determine how active the thyroid gland are. There can be three types of its activity. One is either the thyroid is like normal functioning, that is warm, और इट कैन बी नॉन फंक्शनिंग, कोल्ड हो सकता है वो नोड्यूल, या हाइपर फंक्शनिंग हॉट हो सकता है. हम जो ये आइसोटॉप स्कैनिंग यूज़ करते हैं, थायराइड स्कैनिंग यूज़ करते हैं, ये हम तीन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. एक तो हम यूज़ करते हैं टॉक्सिसिटी विद न्यूडुलैरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए. इफ़ देयर इज़ एनी न्यूडुलैरिटी, प्रेजेंस ऑफ न्यूडुलैरिटी विद द टॉक्सिसिटी, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं. दूसरा, इफ़ यू वांट टू गेट टू नो कि ये थायराइडाइटिस है कि क्या है, ये ग्रेव्स डिजीज़ है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए थायराइडाइटिस और ग्रेव्स डिजीज़ में अभी स्कैन का आपको डिफरेंस पता लग जाएगा. और पोस्ट ऑपरेशन कर लिया, पोस्ट ऑप देखने के लिए कि क्या आया, ये ठीक भी रहा है या नहीं. ऑपरेशन अब उसका स्कैन करके चेक करते हैं. नॉर्मली यू विल सी कि बोथ लोब्स जो होंगे एलिमिनेटेड होंगे. ग्रेव्स डिजीज़ में हाइपर एलिमिनेशन, ज़्यादा हाइपर फ्लोरेसेंस होगी. टॉक्सिक एडिनोमा में भी जिस साइड में मल्टीपल मैलिग्नेंट गोइटर होगा, मल्टीपल नोड्यूलर गोइटर, वहाँ पे ज़्यादा होगी. और टॉक्सिक एडिनोमा में ऑब्वियसली जहाँ एडिनोमा होगा वहाँ पे ज़्यादा होगी. फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इट इज़ यूज्ड इन केसेस जहाँ डिस्क्रीट या सॉलिटरी स्वेलिंग होती है. और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का एक ड्रॉबैक कह लें या एक लिमिटेशन ये है कि ये फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा को नहीं आइडेंटिफाई कर सकती, नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकती. फॉलिकुलर कार्सिनोमा अपने कैप्सुलर इन्वेजन और वेस्कुलर इन्वेजन की वजह से मशहूर है, जो कि सिर्फ एक्सीजनल बायोप्सी में पता लग सकता है या कोर बायोप्सी में पता लग सकता है. वी कैन आल्सो गो फॉर चेस्ट एक्सरे एंड थोरैकिक इनलेट एग्जामिनेशन. ये ज़्यादातर रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन ऑफ द गोइटर अगर हो या ट्रैकियल कंप्रेशन हो, तो फिर ये हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है कि हम एक्सरे करा लें और देख लें कि थायराइड की एक्सटेंशन कहाँ तक है. थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, एज वी ऑल नो कि हमारी जो टंग है उसके फोरामेन सीकम से देयर इज़ एन आउटग्रोथ. यहाँ फोरामेन सीकम से थायराइड लिंक्ड होता है.
आहिस्ता आहिस्ता वो माइग्रेट करता, थायराइड नीचे माइग्रेट करता और टंग जो ऑब्वियसली ऊपर रह जाती है और फिर फोरामन सेकम से जो उसकी एक लिंकेज है वो ख़त्म हो जाती है, वो ऑब्लिटरेट कर जाती है। बट इन सम पेशेंट वो परसिस्ट करती है, तो ज़बान के प्रोट्यूट करने पे वो थायराइड की स्वेलिंग शो होती है। Thyroid gland arises as an outpouching of primitive foregut in the around third week of gestation. It originates at the base of the tongue at the foramen cecum level. So the thyroid gland descends narrowly fetal live in the base of the tongue towards the neck, with the isthmus lying over the second and third tracheal ring. हमने पढ़ा during the fifth week of gestation, the thyroglossal duct lumen starts to obliterate. Fifth week पे obliterate करने लग जाता है and the duct disappears by the eighth week. But rarely, if the thyroglossal duct persists, तो फिर it occur anywhere along the migratory part of the thyroid. Although 80% is found in the juxtaposition to the hyoid bone. हम लोगों ने अब थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट को निकालने की से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि क्या आया ये, इज़ इट द ओनली नॉर्मल फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड और इट इज़ द जस्ट अ रुडिमेंट्री ग्लैंड। तो अगर ओनली फंक्शनिंग है, फंक्शनल थायराइड टिश्यू है, तो फिर उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन इफ़ इट इज़ नॉट अ फंक्शनल टिश्यू या रुडिमेंट्री है तो फिर उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर यू विल फाइंड मिड लाइन स्वेलिंग एंड व्हेन यू विल आस्क द पेशेंट टू swallow anything, to swallow some sips of water or to just protrude the tongue, you can see the swelling moving along with it. What will be the treatment? Cyst trunk suppression. इसमें excision कर देंगे of the whole thyroglossal cyst and the removal of the body of the hyoid along with the base of the body of the hyoid bone up to the base of the trunk. This is known as cyst trunk operation. इसमें अगर हमारे पास थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो फट जाए, अल्फाज में बर्स्ट हो जाए, इनकम्प्लीट एक्सिजन ऑफ थायरोग्लॉसल सिस्ट, so it can lead to fistula formation and this is will be also treated by cyst trunk operation. Lingual thyroid in case of failure of median thyroid to descent, यही केस है, लेकिन केस यहाँ था कि थोड़ा सा डिसेंट हुआ, पूरा डिसेंट नहीं हुआ, माइग्रेशन पे मसला आ गया और ऑब्लिटरेट नहीं हुआ जो उनका लिंक था, यहाँ पे माइग्रेट हुआ ही नहीं, फेलियर ऑफ द मीडियन थायराइड इन एंगल टू डिसेंड नॉर्मली, तो इट लीड्स टू चोकिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्फेजिया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड हेमरेज। एंड फिर हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एक्सोजिनस टीएसएच देते हैं टू सप्रेस, एक्सोजिनस थायरॉक्सिन देते हैं टू सप्रेस द टीएसएच और रेडियोएक्टिव आयोडीन एब्लेशन करते हैं, फॉलोड बाय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सर्जिकल एक्सिजन इज रेयरली नीडेड, इट रिक्वायर्स, इफ रिक्वायर्ड देन शुड बी प्रीसीडेड बाय इवैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल थायराइड फंक्शन। ये नॉर्मल थायराइड है, अगर नॉर्मल थायराइड नहीं है, जैसे मैंने बताया रुडिमेंट्री है, तो फिर आप इसे निकाल सकते हो, नहीं तो फिर लाइफ लॉन्ग उसको थायरॉक्सिन थेरेपी दें ताकि उसका टीएसएच सप्रेस रहे और रेडियोएक्टिव आयोडीन एब्लेशन करें ताकि उसको कोई चॉकिंग स्वॉलिंग का मसला ना हो। Now goiter. What is goiter? Goiter is the thyroid enlargement. It's mostly seen in conditions of the thyroid जहाँ पे thyroid जो है enlarge हो. Normal thyroid gland is also, normal thyroid gland is impalpable, but ऐसी conditions जिसमें thyroid gland palpable हो, it can be euthyroid, it can be hypothyroid और hyperthyroid. There are 5 classification जो इन लोगों ने यहाँ दी हुई हैं डोगर में, जिसमें जो है थायराइड इनलार्ज हो सकता है। इन सिंपल यूथायराइड केस में डिफ्यूज मल्टीन्यूडुलर टॉक्सिक, हाइपरथायराइड स्टेज में डिफ्यूज ग्रेव्स डिजीज में मल्टीन्यूडुलर टॉक्सिक में, हाइपोथायराइड में यूजुअली मल्टीन्यूडुलर गोइटर एंड हाइपोथायराइडिज्म। द गोइटर इज there is enlargement of the thyroid gland, neoplastic, benign and malignant and inflammatory, there is Hashimoto's disease, autoimmune granulomatous decumbens, thyroiditis, bacterial viral inflammations and fibrosing Riddle's disease के IGF-4 से होती है, तो उसमें भी थायराइड जो है लार्ज हो जाता है। सिंपल गोइटर या यूँ थायराइड हो तो उसमें कोई हाइपो या हाइपर थायराइड नहीं है, लेकिन स्टिल द ग्लैंड इज़ इनलार्ज। तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होता, कुछ यूँ है कि देर एंड इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग टीएसएच। टीएसएच इतना हाई होता है तो टीएसएच को फीडबैक जब स्टार्ट करता है, टीएसएच निकलता है, टीएसएच क्या करता है, T3 T4 को ज़्यादा बनाता है और T3 T4 ज़्यादा करके टीएसएच को नेगेटिव फीडबैक से ब्लॉक करते हैं या नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि टीएसएच ज़्यादा ना हो। तो टीएसएच कॉज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड फॉलिकल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज। टीएसएच इंक्रीज़ क्यों करता है, वो कहता है कि T3 T4 लेवल्स डिक्रीज़ जब कर जाते हैं, उनके डिक्रीज़ करना हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि टीआरएच थायराइड रिलीज हार्मोन रिलीज़ करें, और जब वो रिलीज़ करता है तो इंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच प्रोड्यूस करता है, फिर टीएसएच वही T3 T4 ज़्यादा करता है। वाई नोड्यूल्स आर फॉर्म, नोड्यूल्स क्यों बनते हैं? नोड्यूल्स इसलिए बनते हैं कि जब टीएसएच ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली T3 और T4 भी ज़्यादा होता है, और जब T3 T4 ज़्यादा होता है तो वो हार्मोन जो हैं टीएसएच को रिग्रेस करने सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं कि वो रिग्रेस हो। सो थायराइड ग्लैंड रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल साइज।
दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इतना ज़्यादा दफ़ा, ये पूरा साइकिल रिपीट होता है कि TSH ज़्यादा हुआ, T3T4 ज़्यादा हुआ, उसने TSH को सप्रेस किया। इतनी दफ़ा ये होता है कि हमारे पास जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स के क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, वो कोलमनर में बदल जाते हैं एंड दे फॉर्म द नोड्यूल। और वंस दे आर फॉर्म्ड इनटू नोड्यूल, उनके सेल्स कोलमनर क्यूबॉइडल से कोलमनर हो गए, दे फॉर्म द नोड्यूल। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। Clones of the cells that are particularly more sensitive to the growth of stimulation by TSH, resulting in the formation of nodules. What are the cause of simple goiter? ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें उसका TSH ज़्यादा हो रहा है और T3T4 कम हो रहा है? अगर किसी जगह पे आयरन डेफिशिएंसी है, एंडेमिक गोइटर है, डिसहार्मोजेनेसिस है, उसके ऐसे एंजाइम की डेफिशिएंसी है, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हार्मोन थायराइड बन नहीं रहा, या वो बंदा बहुत ज़्यादा कैबेज खा रहा है, कैले एंड रेप कंटेन्स थायोसाइनाइड्स विच इनहिबिट आयरन ट्रैपिंग, ऐसे फूड खा रहा है जिससे आयरन बन ना पाए। इंक्रीज डिमांड्स ऑफ T3 and T4 स्पेशल इन puberty एंड प्रेगनेंसी, मेच्योरिटी में उसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन वो इतना उस बना नहीं पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल यूथायरॉइड गोइटर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, what will be the clinical features? Obviously there will be swelling in the neck, it may be asymptomatic, it can cause patient to present with breathlessness, और patient present करता है with the symptoms of asthma, लेकिन उसे asthma नहीं होता, उसको just thyroid compression हो रहा होता है because of enlarged thyroid gland. Pressure on the esophagus may cause dysphagia. Complications क्या हो सकती हैं, बात याद रखनी है। Complications of the simple euthyroid can be secondary thyrotoxicosis. There can be hemorrhage in the nodule, एकदम कोई भी artery rupture कर जाए because of hyperactivation, या follicular carcinoma can also be present. How will you diagnose? The diagnosis is clinical. You can see the palpable swelling in front of the neck. आप TSH कराएंगे, TFTs कराएंगे, उसके नॉर्मल आएंगे। फाइनेटल एस्पिरेशन साइटोलॉजी सिर्फ तब कराएंगे जब डोमिनेंट सॉलिटरी नोड्यूल आपको फाइंड आउट करना, ना कि डोमिनेंट और सॉलिटरी का मैं डिफरेंस बताते हैं। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसे थायरॉक्सिन पे लगा देंगे 150 to 200 माइक्रोग्राम्स। वैसे लोडिंग डोज 1.7 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट होती है, तो उस पर लगा देंगे फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज से लेकर फ्यू मंथ्स पे। द थायरॉक्सिन रिड्यूसेस द लेवल ऑफ TSH विच इन टर्न कॉज द सेसेशन ऑफ थायराइड ग्रोथ एंड इट डिक्रीज द साइज। वंस द नोडुलर स्टेज ऑफ द goiter is formed, it is irreversible. Most patients are asymptomatic and they do not require treatment. Most of the patients have a simple goiter euthyroid condition, they do not require treatment. व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ थायराइडक्टमी? कैसा पेशेंट आया है जिसका सिंपल यूथायराइड है, सिंपल गोइटर है, तो उसके इंडिकेशंस क्या हैं थायराइडक्टमी की? 3 कंडीशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, एक कॉस्मेटिक, एक कंप्रेशन और एक कंप्लायंस। कॉस्मेटिक अपीयरेंस की वजह से कंप्रेशन, उसका ट्रैकिया या एसोफेगस कंप्रेसर है, कंप्लायंस उसे दवाई खाई नहीं जाती, वो कंप्लायंट नहीं है दवाइयों पे। पेशेंट की एग्जाइटी या रेट्रोस्टर्नल गोइटर, प्रेशर डिफेक्ट्स हैं और कॉस्मेटिक रीजन है, तो उसकी वजह से हम ऑपरेशन कर देते हैं। देयर इज़ अ चॉइस इन द मल्टीनोडुलर गोइटर इंक्लूडिंग द टोटल एंड सब थायराइडक्टमी। टोटल थायराइडक्टमी ये होता है कि हम लोग टोटल थायराइड ग्लैंड को निकाल लेते हैं और वो पर्सन लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन की रिप्लेसमेंट डोज पे रहता है 150, और लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन की रिप्लेसमेंट डोज 150 माइक्रोग्राम्स पे रहता है। टोटल थायराइडक्टमी की जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं वो ये हो सकते हैं कि देयर कैन बी इंजरी टू रिकरेंट लारिंजियल नर्व एंड देयर कैन बी रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जब भी सर्जरी में दिखें तो एक चीज़ नोट करनी होती है कि इसका रूल ऑफ थंब है कि जो भी पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखे आपने वो कहना है कि ये लास्ट पैराथायरॉइड ग्लैंड है और आपने उसे सेव करना है। बट लेट सपोज इन केस, और अक्सर होता है कि पैराथायरॉइड थायरॉइड की सर्जरीज में निकल जाते हैं, तो दीज आर मोर वेरी कॉमन इन टोटल थायराइडक्टमी। इनके 2 डिसएडवांटेजेस के साथ एक एडवांटेज ये होता है कि देयर इज़ नो रिकरेंस रेट टोटल थायराइडक्टमी में कम होता है। ये सर्जरीज हम ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं यंग पेशेंट्स में, ताकि जिनमें रिकरेंस रेट जो है वो बिल्कुल भी ना हो, हम ये यंग पेशेंट्स में परफॉर्म करते हैं। दूसरी टाइप ऑफ सर्जरी है हमारे पास सब टोटल थायराइडक्टमी। सब टोटल थायराइडक्टमी में हम 8 ग्राम्स का पोर्शन राइट और लेफ़्ट, 8 ग्राम्स थायराइड राइट लोब में और 8 ग्राम्स थायराइड लेफ्ट लोब में, 4 × 4 सेंटीमीटर के थायराइड के लोब्स छोड़ देते हैं दोनों साइड पे, ये इस्तेमस है। और उसको थायरॉक्सिन की डोज रिक्वायर नहीं करनी पड़ती, उसे ना लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन लेनी पड़ती है, ना उसकी इंजरी होती है पैराथायराइड की या इंटरनल रिकरेंट लारिंजियल नर्व की। बट वर्स्ट चीज़ ये होती है कि देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ रिकरेंस, और इसलिए हम लोग को ये करते हैं ओल्ड एज पेशेंट में, क्योंकि कोई नर्व इंजर ना हो, उनको कोई पैराथायराइड का मसला ना हो, और रिकरेंस रेट 10 to 15 ईयर्स के बाद होता है, तो तब तक वो यूथायराइड रह सकता है। फिर आता है हाइपरथायराइडिज्म में T3T4 ज़्यादा होंगे, TSH कम होगा। थायरोटॉक्सिकोसिस का बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एक्सेस थायराइड होता है। हाइपरथायराइडिज्म में बता ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन होती है, सो द ऑब्वियसली सारे बेसल मेटाबॉलिक
रेट जो होता है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। यहाँ वो लिखता है कि ज़रूरी नहीं है कि थायरोटॉक्सिकोसिस नीड नॉट टू बी ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म। Thyrotoxicosis can be due to any injury, any trauma, any thyroiditis, functioning of the thyroid tissue, stroma ovarium, कोई ectopic thyroid रिलीज़ कर रहा है या postpartum thyroiditis हो चुका हुआ है या ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स, क्योंकि बीटा एसिजी के साथ लिंक्ड होता है इसका रिलीज़ थायराइड की। तो thyrotoxicosis can be due to any other condition. It's not necessary that it has to be a systemic pathology related to hyperthyroidism. थायरोटॉक्सिकोसिस ऐसी खुद ही बस थायराइड की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी ब्लड में तो इट कैन लीड टू थायरोटॉक्सिकोसिस। कॉमन कॉजेज डिफ्यूज टॉक्सिक, ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक मल्टीन्यूक्लियर गॉइटर, टॉक्सिक न्यूड्यूल। फिर ग्रेव्स डिजीज़ का उसने बताया, हमें पता है ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, T3T4 ज़्यादा होता है, TSH जो है वो कम हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रैप टेस्ट हम क्यों कर, इसमें हम ट्रैप टेस्ट कराते हैं, TSH के रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी आ जाती है और एंटीबॉडी बाइंड करती है जो कि 1 घंटे तक नहीं उतरती। जब नॉर्मल जो होता है TSH वो 20 मिनट में उतर जाता है, ठीक है, जबकि ये एंटीबॉडी जो आती है टी थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, ये एंटीबॉडी उतरती नहीं 1 घंटे तक, विच कॉजेज इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन। Then you have discussed multinodular toxic multinodular goiter, जो कि उसने बताया कि it causes secondary thyrotoxicosis in patients with simple goiter. Simple goiter के हमने पढ़ा था complication with secondary thyrotoxicosis, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। Toxic adenoma, Plummer's disease. Toxic adenoma में there is a formation of an adenoma which produce a lot of thyroid hormone and autonomously, मतलब ये किसी TSH के अंडर नहीं होता, किसी पिट्यूटरी के अंडर नहीं होता, autonomously हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल बन जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया, जिन लोगों में एक्सोजिनस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्सोजिनस ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थायरॉक्सिन, बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन ले लेते हैं, उन पेशेंट्स को ये थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया होता है। साइन एंड सिम्टम्स, ऑब्वियसली सिम्टम्स में पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ गुड एपेटाइट। इसका होता है खाए बकरी की तरह सूखे लकड़ी की तरह, खाता बहुत है लेकिन सूखता भी बहुत है, और ऐसे पेशेंट हाइपरथायराइड के मोटे नहीं होते। इंक्रीज एपेटाइट, इंसोमिया, रेस्टलेसनेस, डायरिया एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जिसमें मेनोरेजिया। व्हाट आर द साइंस, व्हाट विल डॉक्टर सी? टैकीकार्डिया, मॉइस्ट hot palm, exophthalmos, lid lag retraction, exaggerated reflexes, thyroid bruit। थायराइड ब्रूइंग ये कि उसके थायराइड पे आप स्टेथोस्कोप रखेंगे एंड यू कैन फील, यू कैन हेयर पल्सेटाइल उसका आर्टरी का थ्रो, जो कि थायराइड को बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली बढ़ जाती है, इसलिए आपको एक साउंड एडिशनल सुनाई देती है। प्रीटिबियल मिक्सेडिमा, प्रीटिबियल मिक्सेडिमा आगे पढ़ते हैं, कार्डियक अरिथमिया, फाइन रेस्टिंग ट्रेमर्स, थायराइड एक्रोपैथी, दैट इज़ अ पेरियोस्टल बोन फॉर्मेशन एंड ऑन्कोलाइसिस, जो नाखून होते हैं वो नाखून नेल बेड से डिटैच होने लग जाते हैं, ठीक है। आई साइंस इन ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी, ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी जैसे मैंने बुक में पढ़ा, लिड रिट्रैक्ट कर जाती है, मुलर्स मसल जो होता है लेवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस का, मुलर्स मसल जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंडर होता है, वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज थायरॉक्सिन के वो लिड को, अपर लिड को रिट्रैक्ट कर देता है, दैट इज डालरिम्पल साइन। देन देर इज़ वॉन ग्राफी साइन, लिड लैग, अगर पेशेंट कहीं नीचे देखे तो जब नीचे देखता है तो उसकी जो आईलिड है वो बहुत लैग करती है उसकी आई मूवमेंट से, दैट इज़ वॉन ग्राफी साइन। स्टेल वॉक साइन, दैट इज़ इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। एक्सोफ्थेल्मोस, ऑब्वियसली रेट्रोऑर्बिटल सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है विच कॉजेज द आइज टू प्रोप्टोसिस, उसकी प्रोप्टोसिस कराते हैं। मोबियस साइन ये होता है कि आंख इतनी चूँकि बाहर निकल जाती है, उसकी ऑर्बिटल स्पेस प्रॉपर नहीं होती, तो इट इज़ द inability of the convergence of the eyeball due to the lack of availability of the space of the orbit for the moment, प्रॉपर उसकी मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, दैट इज़ द मोबियस साइन। देन ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ऑब्वियसली ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में यही है कि देर इज़ प्लेजिया, देर इज़ पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द आई that control the eye movement because of the retroorbital cellular infiltration in thyrotoxicosis. Peritibial myxedema, जैसे हमने पढ़ा, what is peritibial myxedema? It is the thickening of the skin around the peritibial and the dorsum of the foot. डॉर्सम ऑफ द फुट पे और प्री टिबियल एरिया में स्किन थिकन हो जाती है, दैट शुड नॉट बी मिक्सड विद मैक्सोडेमा। अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, मैक्सोडेमा और प्री टिबियल मैक्सोडेमा दोनों अलग अलग चीज़ें। थॉराइड ब्रूड का बताया हुआ है, द लेटरल लोब्स पे यू कैन नियर द सुपीरियर लोब्स यू कैन हेयर, इट्स द लेट साइन बट यू कैन हेयर इन एडिशनल इंक्रीज वेस्कुलरिटी का साइन, एडिशनल साउंड। कार्डियक साइन है, टैकीकार्डिया, एक्स्ट्रा सिस्टोलिस। डायग्नोसिस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, हाउ यू डायग्नोस T3T4 ज़्यादा, TSH कम, थायराइड स्कैन करेंगे, जैसे मैंने बताया कि थायराइड स्कैन हम कब करते थे, जब हम लोगों ने एक नोडुलैरिटी विद टॉक्सिसिटी को देखना हो या थायराइडाइटिस और ग्रेव्स डिजीज़ को डिफरेंस निकालना, देखना हो कि कौन सा डिफ्रेंशिएट करना हो उन दोनों को। और तीसरा पोस्ट ऑप,
तो यहाँ भी हम लोग थायराइड स्कैन करेंगे. It is useful to locate functionally active nodule. What will be the treatment? Pakistan में and UK में the first line of treatment is antithyroid drugs, whereas in US it is the radioactive iodine ablation that is the first line of treatment. हम देंगे carbamazole और propanol. तो antithyroid drugs में carbamazole and propylthiouracil. They both are safe in pregnancy. तो आप उन्हें pregnant woman में भी दे सकते हैं. और pregnant woman में 40% there is increase in the thyroxine rate. प्रेग्नेंट पेशेंट्स में 40% थायरॉक्सिन, अगर एक पेशेंट 1 ग्राम ले रहा है 100 ग्राम ले रहा है थायरॉक्सिन, तो उसकी 40% थायरॉक्सिन हमने इंक्रीज़ करनी होती है. हम उसे कहते हैं 150 ग्राम थायरॉक्सिन लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में थायरॉक्सिन की थायराइड की क्वांटिटी बढ़ानी होती है. थायराइड इज़ रिक्वायर्ड अ लॉट. तो कार्बामेज़ोल प्रोपाइलथायोरेसिल देते हैं अलॉन्ग विद उसके पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकने के लिए. पेरिफेरल कन्वर्जन होती है T4 to T3, और इस चीज़ को ये पेरिफेरली ये कन्वर्ट होता है एंड इट प्रोड्यूसेस T3 विच फर्दर कॉजेज अ लॉट ऑफ थायराइड मसले. तो हम उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं लाइक प्रोपेनोलॉल विच ब्लॉक्स द पेरिफेरल कन्वर्जन एंड कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स को भी ब्लॉक करता है. व्हाट आर डिसएडवांटेज? ड्रग्स दे रहे हैं तो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, नो रेडियोएक्टिव आयोडीन उसकी भी ज़रूरत नहीं. डिसएडवांटेज ये है कि इसका फेलियर रेट 50% है. इट कैन कॉज ए ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड प्लास्टिक एनीमिया इन पेशेंट्स. फर्दर मोर ये TDS लेना होता है. इसमें कंप्लाइंस लोगों की अक्सर कंप्लाइंस मिस कर जाते हैं, लोग नहीं ले पाते. कार्बामेज़ोल भी TDS लेना होता है और बाद में पहले 10 ग्राम से स्टार्ट करना, फिर 5 मिलीग्राम. व्हाट इज़ ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी? होता ये है कि डॉक्टर्स पहले प्रिस्क्राइब करते हैं लोडिंग डोज जो अच्छी खासी बड़ी होती है. इट इज़ इन दिस रेजिमेन हाई डोज ऑफ कार्बामेज़ोल इज कंटिन्यूड विच सप्रेस T3 एंड T4 इतना ज़्यादा कि इट कॉजेज iatrogenic हाइपोथायराइडिज्म. और फिर उसे इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस iatrogenic हाइपोथायराइडिज्म एकदम उसे इतनी ज़्यादा लोडिंग डोज दे देते हैं कि वो iatrogenic हाइपरथायराइड से हाइपोथायराइड में चला जाता है. तो यूथायराइड नहीं हुआ. अब इस हाइपोथायराइड कंडीशन को रोकने के लिए हम फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं. मेंटेनेंस डोज देते हैं 100 to 150 माइक्रोग्राम. इट इज़ गिवन डेली TDS में. दिस इज कॉल्ड ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी. सर्जरी करते हैं, जैसे बताया सर्जरीज टोटल एंड टॉक्सिक एंड नोड्यूलर गॉइटर में हम सब टोटल या टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं. इट क्योर्स द डिजीज़. इसका एडवांटेज ये है कि फटाफट क्योर रेट हो जाता है. क्योर रेट इसका बहुत हाई है, फटाफट क्योर हो जाता है. डिसएडवांटेज ये है कि इसके हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इंजर हो सकती है, और दूसरा देयर कैन बी द रिस्क ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इन केस ऑफ सब टोटल थायराइडेक्टमी. अब एक पेशेंट आया है, उसकी आपने थायराइडेक्टमी करनी है, उसके क्या आपके प्रिंसिपल्स होंगे? सबसे पहले तो उस पेशेंट को आपने कहना है कि यूथायराइड वो होकर है. जैसे हम डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि अपनी शुगर कंट्रोल करके, इसी तरह इससे कहना है कि अपना थायराइड कंट्रोल करके है. उसको कार्बामेज़ोल 30 to 40 मिलीग्राम ड्रग ऑफ चॉइस है, वो देंगे TDS में हर 8 घंटे बाद देंगे. ठीक है, 5 मिलीग्राम्स. और फिर उसके साथ साथ उसे पेरिफेरल कन्वर्जन T4 to T3 रोकने के लिए जो टारगेट ऑर्गन्स पे एक्ट करता है बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ताकि उसकी पेरिफेरल इफेक्ट्स भी कम हो, टैकीकार्डिया वगैरह. और द अप्रोप्रिएट ड्रग ऑफ चॉइस इज़ प्रोपेनोलॉल 40 मिलीग्राम्स थ्राइस अ डे. और फिर जब कंट्रोल हो जाएगी तो फिर हम लोग सर्जरी करेंगे. वो टाइप ऑफ सर्जरी शुड बी प्रेफर्ड. मैंने बताया कि ओल्ड पेशेंट्स में हम सब टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं, क्योंकि रिकरेंस रेट जो भी होता है, लेकिन वो 15 ईयर्स बाद 10 to 15 ईयर्स बाद आता है. जबकि ओल्ड यंग पेशेंट्स में हम लोग टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं. और फिर रिप्लेसमेंट जब भी टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे, रिप्लेसमेंट डोज 150 माइक्रोग्राम्स पर डे प्रोवाइड कर देंगे उस पेशेंट को. इसलिए एक तो ये कि वो सप्रेस करे, एक तो ये कि वो थायरॉक्सिन थायराइड की कमी को पूरा करे, और दूसरा जो TSH शुतन बेमहार की तरह बढ़ती जा रहा और वो उसने सारा हाइपरथायराइडिज्म कॉज किया था, उसको भी सप्रेस करके रखे. व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन? इट इज़ सेम एज जैसा मैंने बताया, टेक्नीशियम 99 देते हैं, ऑरली रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं. रेडियो एक्टिव आयोडीन इज़ टेकन अप बाय द थायराइड फॉलिकल्स, और फिर थायराइड फॉलिकल्स पे जाके वो बीटा और गामा रेज इमिट करता है. वहाँ जाके वहाँ अपटेक होता है आयोडीन, वहाँ थायराइड हार्मोन बनता है, और वहीं ही आयोडीन जो है अपनी बीटा और गामा रेज से इमिट करता है और सेल्स को, फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. व्हाट इज़ इट्स एडवांटेज? सर्जरी की ज़रूरत नहीं, प्रोलॉन्ग थेरेपी या रिजिमेन की ज़रूरत नहीं, बट ये लेट हाइपोथायराइडिज्म करा देता है. इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन भी एब्सोल्यूट ये कि प्रेग्नेंट वुमेन में और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स में नहीं दे सकते. रिलेटिव ये कि जिन पेशेंट्स को ग्रेव ऑफ थर्मोपैथी या यंग पेशेंट्स हैं, मल्टीनोडुलर गॉइटर है, उनमें रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी में इसलिए क्योंकि आंख का मसला है, पहले उसे एंटीथायराइड ड्रग्स देकर ट्रीट करते हैं ताकि ऑफ थर्मोपैथी जो है उसकी ठीक होने की, आई डिजीज़ ठीक होने की कोशिश करें. What is the choice of therapy? The choice of therapy depends upon the age, gland, diffuse and nodular size और general conditions. अब जैसे डिफ्यूज़ गॉइटर है,
ग्रेव्स डिजीज़ में तो उसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सर्जरी, लेकिन अगर कोई सर्जरी ना कर सके या ना फिट हो तो फिर एंटी थायराइड ड्रग्स दे देते हैं। टॉक्सिक नोडुलर गोइटर है तो इसकी जो है यूजुअली इट इज़ लार्ज एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड इफेक्टिव टू एंटी थायराइड ड्रग्स एंड रेडियो आयोडीन, तो इसकी भी सर्जरी करते हैं। टॉक्सिक एडिनोमा में भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी, नहीं तो फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन। स्पेशल प्रॉब्लम्स इन ट्रीटिंग थायरोटॉक्सिकोसिस, प्रेगनेंसी में हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं दे सकते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं या सर्जरी कर देते हैं या एंटी थायराइड ड्रग्स दे देते हैं टिल सेकंड ट्राइमेस्टर। चिल्ड्रन में ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं दे सकते। कार्डियो थायरो कार्डियक पेशेंट्स में उनमें रेडियो आयोडीन इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टुगेदर विद एंटी थायराइड ड्रग्स फॉर 6 वीक्स। जिन लोगों में ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी हो या प्रोप्टोसिस का मसला हो, आई की डिजीज़ आ चुकी हुई हो, आई का मसला बन चुका हो थायराइड के साथ, उनको हम एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं। एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ रिकरेंस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस आफ्टर सर्जरी, तो फिर उनको भी एंटी थायराइड ड्रग से ट्रीट करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जैसे हमने पढ़ा है कि TSH ज़्यादा होगा, T3 T4 कम होगा। इट कैन बी इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म। इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा कि पैदा होते सार ही, छोटे होते हुए ही पर्सन को हाइपोथायराइडिक स्टेट है। इट कैन बी एंडेमिक और स्पोरेडिक। स्पोरेडिक ये कि उसमें कोई एंजाइम डेफिशिएंसी थी, डिसहार्मोजेनेसिस थे, थायराइड पेरोक्सिडेज की डेफिशिएंसी थी, या थायराइड एजेनेसिस ही नहीं हुई, थायराइड हार्मोन क्या थायराइड ग्लैंड ही नहीं बना, उस पर्सन की हॉर्स क्राई, मैक्रोग्लॉसिया, एम्बलाइकल हर्निया, मेंटल रिटार्डेशन और शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। इमीडिएट टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि, और उसको इमीडिएट थायरॉक्सिन प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि न्यूरोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल डिफिसिट्स ना हो। अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म, इट कैन बी प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न। प्राइमरी ये कि थायराइड में मसला है, आयोडीन डेफिशिएंसी, थायराइड ग्लैंड में मसला है, आयोडीन ही नहीं थी जिसने थायराइड हार्मोन बनाया नहीं, आयोडीन डेफिशिएंसी आफ्टर टोटल थायराइडेक्टमी, रेडियो एब्लेशन, एंटी थायराइड ड्रग्स, हाशिमोटो डिसहार्मोजेनेसिस एंड थायराइड एजेनेसिस। सेकेंडरी ऑब्वियसली उसके थायराइड के ऊपर कौन सिग्नल भेजते हैं, पिचुटरी, पिचुटरी में मसला आ गया TSH। और टर्शरी है हाइपोथैलेमिक इंसफिशिएंसी के पिचुटरी के ऊपर जो हाइपोथायराइड था उसमें मसला, पिचुटरी में पिचुटरी ट्यूमर रिसेक्शन और टर्शरी में हाइपोथैलेमिक इंसफिशिएंसी। व्हाट विल बी द सिम्टम्स, फटीग, lethargy, intolerance to cold, weight gain, constipation, dry skin, loss of hair from the lateral third of the eyebrow, memory loss, hoarseness of voice, and also amenorrhea. Signs: bradycardia, cold extremity, periorbital puffiness, bradykinesis. Bradykinesis, person will be extremely lethargic. And that most important, delayed relaxation phase of ankle jerk. होता क्या है कि अक्सर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं तो यहाँ वो तो पटेलर जर्क से आइडेंटिफाई करते हैं या तो एंकल जर्क से आइडेंटिफाई करते हैं कि एंकल पे उसके एक्चुअली स्टैंडर्ड में मारते हैं। और जिन लोगों को ग्रेव्स डिजीज़ होते हैं या हाइपरथायराइड स्टेट होती है उनका फ़ौरन से पहले जो है वो जर्क की मूवमेंट आ जाती है, और वो उनका जो लेटेंट फेज पे जो होता है उनका रिलैक्सेशन फेज ऑफ एंकल जर्क इज़ वेरी ब्रिस्क। बट जो हाइपोथायराइड होता है, हाइपोथायराइडिज्म में उनकी जो रिलैक्सेशन फेज ऑफ द एंकल जर्क इज़ नॉट ब्रिस्क, वो बहुत लेटेंट, बहुत उनका स्लो होता है रिफ्लेक्स। दिस इज नोन एज वॉल्टमैन साइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Hypothyroidism is delayed. In hypothyroidism, there is delayed relaxation phase of elicited D tendon reflex. Achilles tendon में, patellar tendon में या biceps tendon में आप तीनों में देख सकते हो। Diagnosis: T3 T4 will be less, TSH will be high, and high levels of TPO, thyroid peroxidase. This is a characteristic of autoimmune disease. In which autoimmune disease? Hashimoto. उसमें anti-thyroglobulin, anti-thyroid peroxidase. How will you treat? We'll give oral thyroxine 150 micrograms replacement dose, और जिनको रैपिड ट्रीटमेंट करवानी होती है उनको TDS दे देते हैं हम, ट्राइडोथर्म। Now here comes myxedema. Myxedema is a clinical, or you may say symptomological or clinical feature of hyperthyroidism. Myxedema is a condition in which symptoms of hypothyroidism, they are exaggerated. Myxedema कॉमा, इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म इतना स्वीयर हो जाता है कि पर्सन जो है उसको हाइपोथर्मिया, उसका टेम्परेचर लो, ऑल्टर्ड कॉन्शियस लेवल, डिलीरियम में चला जाता है, उसका मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, रेस्पिरेटरी फेलियर इन कार्डियक डिसफंक्शन. Patients already suffering from hypothyroidism when exposed to stressful condition like सर्जरी आ गई, ट्रॉमा, कोल्ड, निमोनिया, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या ऐसे मेडिकेशन यूज़ कर ली, सीडेटिव्स, एनेस्थीसिया, नारकोटिक्स, वो उनका हाइपोथायराइडिज्म फुल बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम लोग, फ़ौरन से पहले इंट्रावेनसली थायरॉक्सिन देते हैं T3 एंड T4, एंड पेशेंट शुड बी वार्म्ड स्लोली, उन्हें हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे ताकि उनके पेरिफेरल जो भी मसले आए हैं जैसे हार्ट का मसला, रेस्पिरेशन का मसला, उसको भी कंट्रोल किया जाए, और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देंगे। मोर्टालिटी रेट इन दिस कंडीशन इज़ हाई। दूसरा है पिंडर्ट सिंड्रोम, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन वाइवा एंड SCQ। पिंडर्ट सिंड्रोम ये होता है कि पर्सन को गोइटर है, हाइपोथायराइडिज्म है,
गोइटर या हाइपोथायराइडिज्म में आइदर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड पर ऑक्सीडेज डिसहार्मोजेनेसिस हो रही है वहाँ पे, और उस हाइपोथायराइडिज्म के साथ उसे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है। और वो क्यों है? क्योंकि उसका बोनी लिब्राइन जो है वो अबनॉर्मल है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग इम्पेयरमेंट अलॉन्ग विद गोइटर, दिस इज पेंड्रेट सिंड्रोम। नाउ हेयर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और दो चीज़ें हैं कि थायराइड नोड्यूल कई दफ़ा हमने पढ़ा कि सॉलिटरी है, कई जगह हमने पढ़ा डोमिनेंट है। तो दोनों में क्या है डिफरेंस? सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल ये है कि पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड नॉर्मल था पड़ा हुआ, लेकिन उसके एक साइड पे नोड्यूल बहुत अच्छा खासा प्रोमिनेंट है, पाल्पेबल है। सो इट इज़ द सिंगल स्वेलिंग इन अदरवाइज इम्पाल्पेबल ग्लैंड। बाकी ग्लैंड जो है नॉर्मल है, इट इज़ इम्पाल्पेबल, लेकिन एक सिंगल स्वेलिंग दैट इज़ पाल्पेबल, इट इज़ टर्म्ड एज सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। दूसरा आता है डोमिनेंट थायराइड नोड्यूल। व्हाट इज़ डोमिनेंट थायराइड नोड्यूल? डोमिनेंट थायराइड नोड्यूल में होता ये है कि पूरे ग्लैंड में देर इज़ एविडेंस ऑफ पाल्पेबल माइल्ड नोड्यूलरिटी, थोड़ी थोड़ी माइल्ड नोड्यूलरिटी है, या फिर मतलब एक साइड पे हमारे पास थायराइड नोड्यूल है, लेकिन बाकी पूरा ग्लैंड पे कोई नॉर्मल नहीं है। बाकी पूरे ग्लैंड में भी आइदर देर इज़ माइल्ड नोड्यूलरिटी or contralateral there is swelling. Clinical evidence of palpable contralateral lobe है and generalized या फिर generalized mild nodularity is called dominant thyroid swelling. एक थायराइड ग्लैंड जिसमें माइल्ड नोडुलैरिटी हो या कॉन्ट्रालेटरल लोब में, अगर इस लोब में नोड्यूल है तो उसके दूसरे लोब में यू फाइंड स्वेलिंग, यू फाइंड अ कॉन्ट्रालेटरल पाल्पेबल लोब, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट। सॉलिटरी में था शरीफ सा, बाकी पूरा ग्लैंड नॉर्मल है, इम्पाल्पेबल है, और ये जो है सिर्फ एक सॉलिटरी नोड्यूल है। सॉलिटरी नोड्यूल 70% ऑफ केसेस में होते हैं, जबकि डोमिनेंट जो डिस्क्रीट डोमिनेंट नोड्यूल होते हैं वो 30% ऑफ केसेस में होते हैं। सॉलिटरी स्वेलिंग दे हैव हाई मेलिग्नेंसी रेट। हाउ विल यू डायग्नोज? ऑब्वियसली TFTs कराएंगे, थायराइड स्कैन कराएंगे, जैसे मैंने बताया टू डायग्नोज टॉक्सिसिटी विद नोडुलैरिटी, तो हम लोग कराना ही होता है थायराइड स्कैन हम लोगों ने कराया, और हम देखते हैं कि अगर वार्म है तो मतलब नॉर्मली एक्टिव है, हॉट है ओवर एक्टिव है, और अगर कोल्ड है मतलब hypofunctional. A hot nodule is the one which takes up isotope, and while the surrounding tissue does not take much of it. Warm nodule is a normal one, and the cold nodule does not take the isotope. Ultrasonography कराते हैं to distinguish the cystic mass from the solid mass, and also देखने के लिए कि कोई पैराथायराइडिज्म, कोई पैराथायराइड और ग्लैंड तो नहीं इन्वॉल्व, या कोई नोडुलैरिटी सब क्लिनिकल नोडुलैरिटी या लिम्फोडेनोपैथी तो नहीं है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी कराएंगे। ऑब्वियसली इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग। ये पता लगाती है हमें कि कोई कोलॉइड नोड्यूल है, मिडिलरी कार्सिनोमा है, थायराइडाइटिस, पेपिलरी कार्सिनोमा या लिम्फोमा है। एक चीज़ का जो नहीं पता लगा सकते वो ये है कि वो फॉलिकुलर एडिनोमा को फॉलिकुलर कार्सिनोमा से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। उसको कौन डिफ्रेंशिएट करता है? एक सीजनल बायोप्सी। फिर एक कोर बायोप्सी है, जब फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी फेल कर जाए तो फिर कोर बायोप्सी करते हैं पता लगाने के लिए किसी कार्सिनोमा का। व्हाट विल बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? अगर आपको एक थायराइड स्वेलिंग मिले, आप कह सकते हैं कि टॉक्सिक एडिनोमा है, नॉन टॉक्सिक सॉलिटरी नोड्यूल है, फॉलिकुलर एडिनोमा, कार्सिनोमा है, थायराइड सिस्ट, थायरोग्लॉसल सिस्ट या लिम्फ नोड है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग? डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल का जो सॉलिटरी एंड डोमिनेंट हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि इसकी मेन इंडिकेशन ऑफ ऑपरेशन इज़ कि अगर तो ये कार्सिनोमा या मेलिग्नेंसी की तरफ है तो फिर इस स्वेलिंग मतलब अगर मेलिग्नेंट है तो इसकी सर्जरी कर दें और इसको निकाल दें। एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द ऑपरेशन? इफ देयर इज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा, एज आई टोल्ड यू, फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में फाइंडिंग्स पॉजिटिव आई हैं। एज इज लेस देन 20 or greater than 50. Male sex, the nodule is hard and fixed. There is recurrent laryngeal palsy, lymphadenopathy, recurrent cyst, toxic adenoma, pressure symptoms and cosmetic effects की वजह से भी हम उसे निकाल सकते हैं। The treatment of solitary thyroid nodule when indicated, जब भी solitary thyroid nodule को हम लोगों ने निकालना है, the treatment is lobectomy, पूरा का पूरा एक लोब एक साइड से निकाल देंगे, लाइक एक लोब पूरा एक निकाल देंगे, ठीक है। एक चीज़ जो हमने पढ़ी गोइटर में वो ये था रेट्रोस्टर्नल गोइटर। व्हाट इज़ रेट्रोस्टर्नल गोइटर? रेट्रोस्टर्नल गोइटर में ये होता है कि थायराइड ग्लैंड द ग्रोज इनलार्जमेंट ऑफ द लोअर पोल ऑफ द नोड्यूलर गोइटर। लोअर पोल इतना ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है कि वो स्टर्नम के पीछे चला जाता है और स्टर्नम के पीछे इनलार्ज होने लगता है। वो लोग जिनकी गर्दन छोटी होती है या प्री ट्रैकियल मसल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली मैन, तो रेट्रोस्टर्नल गोइटर ज़्यादा उनमें एग्जिबिट करता है। क्लिनिकल फीचर्स
obviously there will be obstruction of the food pipe and as well as the respiratory tract, dysphagia, dyspnea, particularly in night, and patient would present with the diagnosis of asthma. uh, इंग्रॉजमेंट ऑफ द नेक एंड द सुपरफिशियल वेन, स्पेशली जब वो पर्सन अपना हाथ अपना बाजू सर के ऊपर लेकर जाएगा तो उसकी जो वेन्स होंगी ऑफ द नेक एंड द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द चेस्ट वो इंग्रोज कर जाएंगे. दिस इज नोन एज पेम्बर्सन साइन. दिस इज इंपॉर्टेंट. हाउ विल यू डायग्नोज? एज आई टोल्ड यू कि इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैंने बताया कि रेट्रोस्टेनल गोइटर को एक्सरे एंड थोरैकिक इनलेट, एक्सरे चेस्ट एंड थोरैकिक इनलेट से डायग्नोज कर सकते हो. तो हियर आल्सो विल गो फॉर द एक्सरे एंड सीटी स्कैन हमें बताएगा कि स्टेजिंग उसकी बताएगा और एनाटॉमिकल एक्सटेंट बताएगा क्या आया ज़्यादा तो नहीं बढ़ चुका हुआ. सॉफ्ट टिश्यू शेडो इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम ऑफ द एक्सरे कैन गेट अस नो कि रेट्रोस्टेनल गोइटर है कि नहीं है. एज हेयर यू कैन सी पूरा रेट्रोस्टेनल गोइटर. हाउ विल यू ट्रीट? एंटीथायराइड ड्रग्स एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन, ये वर्सन करती हैं कंप्रेशन को. तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है सर्जरी. रेट्रोस्टेनल गोइटर को आप अपनी दे कैन बी डिलीवर्ड थ्रू फिंगर्स. आपने सर्जरी की ओपन किया उसे फिंगर से भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप उसे पीस बाय पीस करके भी निकाल सकते हो. और अगर तब भी नहीं निकल रहा आप स्टर्नोटमी करो. आप स्टर्नम को 2 में डिवाइड करो, स्टर्नम को खोलो, रिट्रैक्ट करो और फिर थायराइड को बीच में से निकाल दो. थायराइडाइटिस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ थायराइड दैट कॉजेज मोस्टली इट कॉजेज हाइपोथायराइडिज्म. सबसे पहले है हाशिमोटो, हमें पता है ऑटोइम्यून डिजीज़ है. एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज और एंटी थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करती है. It mostly affects women and there is lymphocytic infiltration of the thyroid follicle. Thus lymphocytes जो होते हैं thyroid follicles को destroy कर देते हैं. Clinical features, there is sudden painless swelling. It is film to hard and soft. Initially patient develops hyperthyroidism. क्यों? क्योंकि एकदम सारे follicles burst करते हैं, सारा thyroid hormone निकल जाता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता damage to the cells के बाद later the patient presents hypothyroidism and it is an autoimmune mechanism. The gland, there is destruction of the gland by the autoimmune mechanism. डायग्नोज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली एंटीबॉडीज टेस्ट कराएंगे और फाइनिटल एस्पिरेशन साइटोलॉजी रिवील्स लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन. क्रॉनिक लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस कैन लीड टू लिम्फॉइड थायराइड. एक मैंने बताया था ग्रेव्स डिजीज़ और थायराइडाइटिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी स्कैन करा सकते हैं. तो स्कैन भी करा सकते हैं, इसके अलावा हम फाइनिटल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी करा सकते हैं और हम लोग एंटी थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट भी कराएंगे. हाउ विल यू ट्रीट? हाइपोथायराइडिज्म में है तो विल ट्रीट बाय रिप्लेसमेंट डोज ऑफ थायरॉक्सिन 150 माइक्रोग्राम्स. नहीं तो गोइटर इट इंक्रीजेज इन साइज तो फिर हम स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम सर्जरी भी कर सकते हैं, थायराइडेक्टमी भी कर सकते हैं. दूसरा है सब एक्यूट डीक्वेरेंस थायराइडाइटिस. आफ्टर वायरल इन्फेक्शन एक फिर पेनलेस स्वेलिंग डेवलप हो जाती है. वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू मम्स मीजल्स एप्स्टाइन बार वायरस. तो पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपोथायराइडिज्म दैट इज फॉलोड बाय हाइपोथायराइडिज्म. ESR इज यूजुअली रेज्ड और हम लोग इन्हें क्या देते हैं? प्रेडनिसोलोन देते हैं अलॉन्ग विद थायरॉक्सिन थेरेपी. Riddle thyroiditis, it is a fibrosing thyroid condition. Fibrosing thyroid and may occur in association with retroperitoneal and retromediastinal fibrosis. मीडियास्टिनम की भी फाइब्रोसिस हो रही है और पेरिटोनियम की भी फाइब्रोसिस हो रही है. तो थायराइड टिश्यू फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है विच इन्फिल्ट्रेट्स द कैप्सूल एंड मसल्स. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश विद द एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा एंड द डायग्नोसिस कैन बी मेड ओनली ऑन बायोप्सी. ट्रीटमेंट उसकी वही है हाइड्रोस्टेरॉइड्स और थायरोक्सिन. ट्यूमर्स ऑफ द थायराइड बेनाइन मलिग्नेंट लिखे हैं. बेनाइन में फॉलिकुलर एडिनोमा, मलिग्नेंट में पेपिलरी कार्सिनोमा. पेपिलरी कार्सिनोमा का स्प्रेड यहाँ लिखने लिम्फेटिक होता है. फॉलिकुलर कार्सिनोमा का स्प्रेड वेस्कुलर होता है. एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है. फिर मेडुलरी कार्सिनोमा जिसका स्प्रेड लिम्फेटिक और वेस्कुलर दोनों होता है. एंड वी हैव मेलिग्नेंट मेलानोमा, मेलिग्नेंट लिम्फोमा. मेटास्टेटिक कैंसर मेटास्टेटिक स्प्रेड जो है उसका किडनी एंड ब्रेस्ट में है. फॉलिकुलर एडिनोमा का पढ़ते हैं. इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द थायराइड. फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी नहीं बता सकती, सिर्फ एक्सीजनल रेंसियन बायोप्सी बता सकती है कि क्या आया ये कार्सिनोमा है कि नहीं, क्योंकि कार्सिनोमा में वैस्कुलर और कैप्सुलर इन्वेजन है. ट्रीटमेंट इज लोबेक्टमी, पूरा का पूरा लोब फॉलिकुलर एडिनोमा वाला निकाल देते हैं. मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में वो बताता है कि जो लोग रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उनमें पेपिलरी कार्सिनोमा होता है. जिन लोगों को एंडेमिक गोइटर होता है एज ए रिजल्ट ऑफ TSH स्टिमुलेशन वो ज़्यादातर प्रोन होते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा में. मेडुलरी कार्सिनोमा उन लोगों को होता है जिनकी मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया 2A 2B जीन प्रोटोन को जीन में म्यूटेशन आई हो. और लिम्फोमा ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस. हाशिमोटो बदल के लिम्फोमा बदल जाता है. स्मॉल B सेल लिम्फोमा हमने पढ़ा था ना, तो ये वही है. Clinical features, these all nodules will be hard and fixed and there may be hoarseness due to recurrent laryngeal palsy or cervical lymphadenopathy. पेपिलरी कार्सिनोमा लिम्फेटिक स्प्रेड होता है तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को तो इसने इन्वॉल्व करना ही था. फॉलिकुलर ने हेमाटोजेनस स्प्रेड करना था थ्रू लिवर, लंग, बोन एंड ब्लड से. मेडुलरी कार्सिनोमा का लिम्फेटिक और हेमाटोजेनस दोनों स्प्रेड थे. हाउ विल यू डायग्नोज? फाइनिटल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल इन डाउटफुल केसेस. तो लो
लोबेक्टमी और टोटल थायरॉइडेक्टमी कैन बी परफॉर्म। अगर डाउटफुल है तो दोनों टोटल थायरॉइडेक्टमी कर दें या लोबेक्टमी कर दें। इंसिजनल बायोप्सी जब हम करते हैं, इट कैन कॉज सीडलिंग ऑफ द सेल्स एंड लोकल रिकरेंस। इंसिजनल बायोप्सी से हम लोगों ने कोई चीज़ ली तो वहाँ पे वी कैन लीक द ट्यूमर इन इट, तो वी कैन प्रोवाइड द सीड्स फॉर द कार्सिनोमा, तो इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबली नहीं करते हैं, हम उसे रिमूव ही कर देते हैं। CT scan and MRI are helpful in the detection of the extent of the tumor. Now come the staging, which is the most important question of this thyroid. इसमें ये होता है कि ये चीज़ आप देखेंगे अंडर 45 और ओवर 45 इन दोनों की स्टेजिंग डिफरेंट होती है। कभी भी आप एक पेशेंट जो कि अंडर 45 है उसे ये नहीं कहते कि आपको स्टेज 3 या स्टेज 4 कार्सिनोमा है, क्योंकि उसे हो ही नहीं सकता। लेकिन ओवर 45 आपका स्टेज 3 स्टेज 4 हो सकता है थायराइड का कार्सिनोमा। इसने कुछ टर्म्स बताई हुई हैं बुक वाले ने। T(x) प्राइमरी कैन नॉट बी असेस्ड, T नॉट नो एविडेंस, T1 व्हेन द थायराइड का जो कार्सिनोमा इट इज़ लिमिटेड टू थायराइड 2 सेंटीमीटर और लेस, T2 limited to thyroid greater than 2 cm and less than 4 cm, T3 it is limited to thyroid greater than 4 cm and T4 extended beyond the capsule any size. इस तरह lymph nodes the NX cannot be assessed and not no regional and N1 regional lymph nodes present मिल गया है, डिटेक्ट हो गया है, और अल्ट्रासोनोग्राफी से lymph nodes डिटेक्ट होते हैं। मेटास्टेसिस MX cannot be assessed, no metastasis M0 and M1 metastasis present। अब हम ये स्टेजिंग पढ़ते हैं। स्टेजिंग में स्टेज ऑफ द कैंसर TNM स्टेजिंग हम करेंगे। TNM स्टेजिंग फॉर पीपल हु आर अंडर 45। स्टेज 1 उनकी क्या होती है, हम कहते हैं कोई भी ट्यूमर का, कोई भी ट्यूमर को प्रेजेंट करने के लिए कोई भी T आ जाए, T(x) आ जाए या T4 आ जाए, एंड एनी N कोई भी लिम्फ नोड आ जाए, या लिम्फ नोड डिटेक्ट हो जाए या लिम्फ नोड ना डिटेक्ट हो या लिम्फ नोड असेस ही ना हो सकें, एनी T एनी N और मेटास्टेसिस ज़ीरो रहे। जब तक मेटास्टेसिस ज़ीरो रहेगी वो पेशेंट जो है स्टेज 1 तक रहेगा। अगर यही मेटास्टेसिस एनी T हो, एनी N हो और मेटास्टेसिस 1 हो जाए तो ये स्टेज 2 बन जाएगा, जो कि अंडर द एज ऑफ 45 उसके लिए स्टेज 4 और स्टेज 3 से कम नहीं है कि मेटास्टेसिस हो चुकी है, दिस इज समथिंग डेंजरस। अब यही चीज़ आप लें ओवर द एज ऑफ 45 ईयर्स। ओवर द एज ऑफ 45 ईयर्स स्टेजिंग इज़ डिफरेंट। स्टेज 1 में वो कहता है कि ट्यूमर 1 हो, ट्यूमर 1 मतलब ये कि लिमिटेड टू द थायराइड 2 सेंटीमीटर और लेस, N 0 हो और N M वो भी 0। स्टेज 2 में T2 N 0 नोड मतलब नहीं मिला और मेटास्टेटिक साइड भी नहीं मिली, या फिर और T3 N नॉट M नॉट, और स्टेज 3 में T4 कोई नोड ना मिले, मेटास्टेटिक साइड भी ना मिले, और एनी T मतलब ये कि कोई भी T असेस हो ना असेस हो, 2 सेंटीमीटर से तक हो, 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, 4 सेंटीमीटर से छोटा हो या 4 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो कि कैप्सूल को एक्सटेंड कर जाए। एनी T3 में ही एक और है उसकी, इट कैन बी लेबल स्टेज 3 के दो कंडीशन हो सकती हैं। एनी T लिम्फ नोड 1 हो जाए और मेटास्टेसिस 0 ही रहे, और स्टेज 4 में जो कि सबसे ज़्यादा लीथल स्टेज है, एनी T एनी N और मेटास्टेसिस 1 हो जाए। जब मेटास्टेसिस 1 हो जाएगी इट विल बी स्टेज 4। जब तक 0 रहेगी तब तक माइनर स्टेजेस ही रहेगी। ठीक, अब वो पेपिलरी कार्सिनोमा का बताता है। व्हाट इज पेपिलरी कार्सिनोमा? पेपिलरी कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा 60% ऑफ इट इज़ मेलिग्नेंट। हमें बताया कि ऑर्फन आई न्यूक्लियस होते हैं, इसमें पेपिलरी प्रोजेक्शंस होते हैं, इंट्रान्यूक्लियर ग्रूव्स और इंट्रान्यूक्लियर इंकल्शंस होते हैं। लेटरल एब्रेंट थायराइड इट इज़ अ मेटास्टेटिक ट्यूमर इन सर्वाइकल लिम्फ नोड। ऑब्वियसली हमें पता है कि पेपिलरी कार्सिनोमा लिम्फेटोजेनस स्प्रेड है, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाना ही जाना था। फ्रॉम अकल्ट प्राइमरी पेपिलरी थायराइड कैंसर इट कॉजेज लेटरल एब्रेंट थायराइड। फॉलिकुलर कार्सिनोमा एंडेमिक कार्सिनोमा से बनता है और इट इन्वेड्स द कैप्सूल्स एंड द वेसल्स। दोनों पेपिलरी और फॉलिकुलर कार्सिनोमा को मिलके क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा कहते हैं। हर्टल सेल इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ द फॉलिकुलर कार्सिनोमा। हर्टल सेल में आपको बहुत ज़्यादा एओसिनोफिलिक मटेरियल दिखता है, एओसिनोफिलिक सेल्स मिलते हैं दैट इज पैक्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एओसिनोफिलिक होता है विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्साफिल सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो एओसिनोफिलिक सेल्स पैक्ड विद द माइटोकॉन्ड्रिया, these are derived from the auxophyll cells of the thyroid gland. तो ये हर्टल सेल that is a variant of the thyroid follicular carcinoma. व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? डिफरेंशिएटेड पेपिलरी कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट ये है कि सर्जरी करते हैं, टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं।
और टोटल थायरॉयडेक्टमी के बाद हम उनकी रिप्लेसमेंट डोज दे देते हैं 150 माइक्रोग्राम्स ऑफ थायरॉक्सिन। हाउ रेडियो एक्टिव आयोडीन हेल्प्स। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करती है, हम पेशेंट को ऑरली देते हैं, वो एब्जॉर्ब कर जाती है इन थायरॉयड फॉलिकल्स और वहाँ पे इट इमिट्स रेडिएशन एंड डिस्ट्रॉय दोज फॉलिकल्स। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में हम क्या करेंगे। एक तो मैंने बताया था कि पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में हम लोग थायरॉयड स्कैन भी करा सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में अब पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका हुआ एकदम उसका थायराइड निकल गया तो वो हाइपोथायराइडिज्म में जा सकता है, उसको हमने देनी है थायरॉक्सिन थेरेपी रिप्लेसमेंट और उसका फॉलोअप करना है। अगर फॉलोअप में हमें कुछ दिखे कि उसका TSH लेवल या थायरोग्लोबुलिन लेवल रेस्ड हमें दिख रहा है, ठीक है, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द फॉलोअप द होल बॉडी थायराइड स्कैन, तो फिर हम एनी स्टेज हमें थायरोग्लोबुलिन ज़्यादा दिखते तो हम उसका थायराइड स्कैन कराते हैं और उस पर डिटेक्ट करते हैं कि मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी को दे देते हैं उस बंदे को। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द होल बॉडी थायराइड स्कैन। प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि उस पर्सन के हम लोगों ने नॉर्मल TSH को रिस्टोर करना है। अगर वो पर्सन कोई एक्सोजिनस थायराइड ले रहा है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ कराना है, क्या कि वो ना ले, टेपर ऑफ कराना है ताकि उसके जो नॉर्मल TSH है उसको रिकॉर्ड करें, उसको हम बढ़ने दें क्योंकि उसने ही आयोडीन को रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक TSH के थ्रू ही होगा। द रेशनल ऑफ द होल बॉडी थायराइड स्कैन कैन डिटेक्ट एनी मेटास्टेटिक डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा। डिफरेंशिएटेड कौन है, पैपिलरी और फॉलिकुलर को डिफरेंशिएटेड कहते हैं। रेजिडुअल मेटास्टेटिक, द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ TSH इज मैंडेटरी, कि एडिक्वेट लेवल ऑफ TSH हो ताकि बिफोर परफॉर्मिंग द स्कैन थायरॉक्सिन थेरेपी, ताकि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सके। हम क्या करते हैं, थायरॉक्सिन को T3 को 6 वीक्स बिफोर द स्कैन टेपर ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं और T3 जो उस पर्सन को दे रहे होते हैं उसको हाइपोथायराइडिज्म से बचाने के लिए वो भी स्कैन से 2 हफ्ते पहले ख़त्म कर देते हैं, उसके टेपर ऑफ करा देते हैं डोज ताकि उसका TSH लेवल राइज कर जाए बिफोर द ट्रीटमेंट बिफोर द स्कैन। जब TSH राइज कर जाएगा बिफोर द स्कैन तो स्कैन के वक्त हम जब भी उसे आयोडीन देंगे वो फटाफट अब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल नॉर्मली अब्जॉर्ब कर लेगा। मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा, मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा पेरिफेरल सेल्स का होता है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड नॉट फ्रॉम द फॉलिकल्स। देयर इज हाई कैल्सिटोनिन लेवल एंड कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2A 2B की प्रोटो ऑन्कोजीन्स की RAT प्रोटो ऑन्कोजीन की म्यूटेशन से होता है। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट, टोटल थायरॉयडेक्टमी अलॉन्ग विद बायलेटरल सेंट्रल लिम्फ नोड्स। तो सेंट्रल लिम्फ नोड्स रेडियल नेक एक्सियन भी कर देते हैं, उसके लिम्फ नोड्स भी निकाल देते हैं। Medullary thyroid carcinoma in MEN2A, it is associated with pheochromocytoma and hyperparathyroidism. This is something worth notable कि उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा भी होता है और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म भी होता है। तो अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके पास मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा का तो उसको आपने फियोक्रोमोसाइटोमा का भी देखना है। अगर उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा है तो आपने मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा तो पहले फियोक्रोमोसाइटोमा को ट्रीट करेंगे कि ये ना हो एकदम हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाए ड्यूरिंग द ऑपरेशन। और इस तरह अगर उसे जो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो उसके हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेंगे कि ये ना हो कि पेशेंट जो है हाइपोकैल्सीमिक स्टेट में चला जाए, तो उसको नॉर्मल कैल्सीमिक स्टेट में लेकर आएंगे। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा इज मोर अग्रेसिव वैरायटी और इसकी भी कंप्लीट एक्सचेंज कर देते हैं। लिम्फोमा ऑफ द थायराइड, हाशिमोटो ही बिगड़ के लिम्फोमा ऑफ द थायराइड बन जाता है, यानी ऑटोइम्यून डिजीज़ लाइक हाशिमोटो थायराइडाइटिस। और फिर उसकी कीमोथेरेपी कर देते हैं, अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में तो रेडियोथेरेपी कर देते हैं, या स्टेज 3 स्टेज 4 में तो उसकी कीमोथेरेपी कर देते हैं। व्हाट इज़ टोटल, सब टोटल एंड नियर टोटल थायराइडेक्टमी। टोटल में मैंने बताया दोनों लोब्स और इस्थिमस को निकाल देते हैं। सब टोटल में 4/4 के 8 ग्राम्स के थायराइड टिश्यू को दोनों साइड से प्रिजर्व कर देते हैं। नियर टोटल में क्या करते हैं, नियर टोटल में हम लोग एक साइड पे हम लोग 8 ग्राम्स ऑफ थायराइड को छोड़ देते हैं। 8 grams of thyroid tissue is preserved on one side with total lobectomy on the other side। दूसरे लोब को टोटली हम लोग निकाल लेते हैं, दिस इज नोन एज डन हिल प्रोसीजर, ठीक है। 8 grams of thyroid tissue is preserved on one side with only with total lobectomy on the other side, this is known as Hartley Dunhill procedure। दूसरा लोबेक्टमी में ऑब्वियसली लोबेक्टमी में जैसे दो है ना, एक लोब को पूरा निकाल दिया प्लस उसका इस्थमस को भी, एक लोब को और उसके इस्थमस को भी पकड़ के निकाल दिया और दूसरे लोब को इस्थमस के बगैर रहने दिया, मतलब अ लोब प्लस इस्थमस, दिस अकर्स इन लोबेक्टमी, दोनों को निकाल देते हैं पकड़ के। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एज आई टोल्ड यू, कार्बामेज़ोल देंगे, उसको प्रोपानोलॉल देंगे, उसको यूथायराइड करने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश नहीं इनफेक्ट करेंगे
स्टेप्स ऑफ थायरॉइडेक्टमी। स्टेप्स ऑफ थायरॉइडेक्टमी, जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट की नेक को एक्सटेंड करेंगे। लेट्स सपोज इफ़ इट इज़ द हेड एंड को तो हम लोगों ने एलिवेट करना ही करना है, इसके अलावा नेक एंड को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ठीक है। नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। नेक को एक्सटेंड करने के बाद 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्नल एंड, जो जुगुलर नोच है, सुप्रास्टर्नल नोच, उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर हम एक ट्रांसवर्स 4 to 5 सेंटीमीटर का इंसियन देंगे। इंसियन देने के बाद सबकुटेनियस टिश्यू को और प्लाटिस्मा, जो कि फाइब्रस शीट मस्कुलर शीट होती है फेस एंड नेक की, उसको रिमूव करेंगे, शार्पली इंसाइज करेंगे। सुपीरियर अपर वाले चीज़ों को ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे, नीचे कॉटरी करके नीचे की तरफ, नीचे वाले फ्लैप्स को नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे, इन्फीरियरली करेंगे। देन जो मीडियन रैफे होगा उसको इंसाइज करेंगे। मीडियन रैफे जो मसल सारे मीडियन लाइन पे सारे अटैच होते हैं, मीडियन रैफे को इंसाइज करेंगे एंड स्ट्रैप मसल्स को मोबिलाइज करेंगे। अगर तो थायराइड इतना भी इनलार्ज नहीं है तो उसको सिंपली रिट्रैक्ट कर देंगे साइड्स पे। लेकिन अगर स्ट्रैप मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और थायराइड बहुत ज़्यादा लार्ज है तो फिर हम उन्हें स्ट्रैप मसल्स को कट करना पड़ेगा। थायराइड के एक लोब को, जो भी अफेक्टेड लोब है, उसको मीडियली रिट्रैक्ट करेंगे, मिडल वेन निकालेंगे, पकड़ेंगे उसको, प्रिजर्व मतलब उसको देखेंगे। विल आइडेंटिफाई द मिडल थायराइड वेन, विल रिट्रैक्ट द अफेक्टेड लोब ऑफ द थायराइड। जो भी अफेक्टेड लोब थायराइड का होगा, लेट्स सपोज अगर इस साइड का भी होगा तो फिर उसे मीडियन ले करेंगे, अगर इस साइड के तो उसे इस तरफ मीडियली भेजेंगे। एंड विल आइडेंटिफाई द मिडल थायराइड वेन, विल लाइगेट एंड वी विल डिवाइड इट। केयरफुली इसे करना है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को कुछ ना हो। इसी तरह हम सुपीरियर थायराइड आर्टरी और सुपीरियर थायराइड वेन को सुपीरियर पोल ऑफ थायराइड पे जाके क्लैम्प करेंगे और उन्हें सुपीरियर पोल के करीब लाइगेट करेंगे। करीब क्यों करना है? टू अवॉइड इंजरी टू द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड वेन को हम लोग ना दूर जाके क्लैम्प करते हैं। और उन्हें दूर जाके क्लैम्प क्यों करते हैं? कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पे इंजरी ना हो जाए। ये चीज़ नोट वर्ती है कि सुपीरियर को उसके करीब करना है ताकि एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को मसला ना हो, और उसको दूर करना है ताकि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी ना हो। फिर बेरिस लिगामेंट, जो जैसे मैंने बताया डीप सर्वाइकल लिगामेंट है जो ट्रैकिया और थायराइड को जॉइन करता है, उसको डिवाइड करेंगे और थायराइड को मोबिलाइज करते हुए बाहर निकाल देंगे। अगर होमोस्टैसिस हो रही है तो होमोस्टैसिस सिक्योर्ड सक्शन करेंगे, स्ट्रैप मसल्स को अप्रॉक्सीमेट किया, प्लेटिज्मा को और स्किन को स्टिच बैक किया सबक्यूटिकुलर स्टिचेस से और कंटिन्यूस अब्जॉर्बेबल स्विचर से। इंपॉर्टेंट बात ये नोट करती है कि व्हेन परफॉर्मिंग टोटल थायरॉइडेक्टमी फॉर कार्सिनोमा, स्टार्ट विद द लोब जहाँ पे मसला है, जहाँ में लीजन है। लेट सपोज अगर इसके जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है इसके राइट लोब में लीजन है तो हमने राइट लोब से ही स्टार्ट करनी है सर्जरी, कि इन केस खुदा ना खास्ता यहाँ के रिकरल लेरेंजियल नर्व इंजर्ड हो जाए तो वहाँ ही हम ऑपरेशन अबॉर्ट कर दें, राइट लोब निकालें और बंद कर दें। ये ना हो कि हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें, लेफ़्ट में कोई छोटा सा नोड्यूल था तो वहाँ से स्टार्ट करें और वहाँ भी इंजरी हो जाए, यहाँ भी इंजरी हो जाए, दोनों तरफ मसला हो जाए। मिनिमली इन्वेसिव थायरॉइडेक्टमी आजकल ज़्यादा परफॉर्म हो रही है, वो ब्रेस्ट से, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द चेस्ट से, सुप्रा क्लेविकुलर अप्रोचेस से लेकर जा रहे हैं। एंडोस्कोपिक अप्रोच 3 सेंटीमीटर इंसियन देते हैं विद नो फ्लैप क्रिएशन एंड मिनिमल डायसेक्शन टू डिलीवर द थायराइड। वीडियो असिस्टेंस कैन बी यूज टू इंप्रूव द विजुअलाइजेशन विया द स्मॉल इंसियन। और टोटल एंडोस्कोपिक अप्रोचेस की जा रही हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? हेमरेज, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हेमरेज हुआ, इतना ज़्यादा खून बह रहा है और खून रुक नहीं रहा, इतना ज़्यादा वो हो रहा है। स्लिपेज ऑफ द लाइगेचर एंड लाइंग डीप टू द स्ट्रैप मसल लीडिंग टू टेंशन हीमाटोमा, और हीमाटोमा कंप्रेस कर रहा है ट्रैकिया को, लीडिंग टू ब्रेथलेसनेस। यूजुअल प्रेजेंटेशन इंक्लूड सडन स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक अलॉन्ग विद द ब्रेथलेसनेस इन अर्ली ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ऐसी सूरत हाल इमरजेंसी की होती है। इमीडिएटली लुक फॉर द साइंस ऑफ द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, किसी सीनियर को बुलाएं, उसके स्टिचेस को रिमूव करें और उसकी अगर सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जैसे बताया इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्रिकोथायरॉइडेक्टमी करें। एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन नहीं करनी होती ऐसी सिचुएशन में, पहले उसका ट्रैकिया जो है वो उस पर प्रेशर पड़ रहा है। इन ऑपरेटिंग रूम इवैक्यूएट द हीमाटोमा और लाइगेट करें ब्लीडिंग वेसल्स को, और अगर ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी रिक्वायर्ड होगी, वो भी करें। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रैकियोमलेशिया। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन जैसे लिखा हुआ है कि लैरिंजियल एडिमा हो सकता है, हीमाटोमा या ट्रॉमा टू द लैरिंग्स हो सकता है ड्यूरिंग इंटुबेशन। ट्रैकियोमलेशिया, व्हाट इज़ ट्रैकियोमलेशिया? होता कुछ यूँ है कि थायराइड इतना ज़्यादा इनलार्ज हुआ था और इतना ज़्यादा इनलार्ज हो गया, लेट्स सपोज इफ इट इज द ट्रैकिया एंड दिस इज द इनलार्ज क्वाइटर, सॉरी, तो उसने इसको खींच रहा होता है, मतलब एक खिंच डाल रहा होता है, एक ना पुश डाल रहा होता है, पुश कर रहा होता है इतना बड़ा इनलार्ज क्वाइटर ट्रैकिया के बेरिज लिगामेंट पे। तो जो सारे जो उसके ट्रैकियल रिंग्स है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स, इतना बड़ा क्वाइटर जो है उस पर पुश डाल रहे होते हैं। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स अकोमोडेट टू दैट पुश, बेरिज लिगामेंट के साथ लिंक्ड होते हैं तो अकोमोडेट टू द पुश। जो ही हम जब ये थायरॉइडेक्टमी से थायराइड निकालते हैं, अब ये सारे जो
कार्टिलेजेस थे अब उससे पुश मिल नहीं रही, वो तो अकोमोडेट हो चुके होते उस पुश से, तो वो क्या करते हैं, दे सॉफ्टन और वो पेटेंसी को वो ना अंदर की तरफ कोलैप्स करने लग जाते हैं. This leads to tracheomalacia, a rare complication after operating a huge, long-standing goiter. Huge goiter exerts a pull on the tracheal ring, which, when thyroidectomy is performed, the pull is lost and the tracheal ring collapse, causing respiratory obstruction. It is treated by endotracheal intubation, और यहाँ कर दो endotracheal intubation और by tracheostomy for 2 to 3 days. Recurrent laryngeal nerve injury हो सकती है, और उस इंजरी जब हो गई है तो फिर आप उसको emergency tracheostomy may be needed. ऑब्वियसली अगर सांस नहीं आ रहा, बहुत बुरी हालत है, एंड लेटरलाइजेशन ऑफ द कॉर्ड में भी नीडेड, इंजेक्शन टेफ्लॉन लगाएंगे. हाइपोकैल्सीमिया, अगर खुदा ना खास्ता पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो निकल गए हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं रहा, तो ऐसे केसेस में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है. हाइपोकैल्सीमिक स्टेज में चिवोस्टिक साइन, चिवोस्टिक ये कि अगर पर्सन की जो जाइगोमेटिक आर्च है उस पर हम टैप करेंगे, ऐसे उंगली से टैप करेंगे तो उसके सारे जो फेशियल मसल्स हैं ना वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे. और इसी तरह ट्रोशियस साइन, ट्रोशियस साइन ये है कि लेट सपोज आर्म के ऊपर स्फिग्मोमेनोमीटर बीपी ऑपरेटर्स का कफ बांधा, कफ जो ही हम लोगों ने इन्फ्लेट किया तो उसके सारे जो होंगे उसका हैंड सारा कंट्रैक्शन में जाना शुरू कर देगा. दिस इज नोन एज ट्रोशियल साइन. कार्पोपीडल स्पैज्म, कार्पोपीडल स्पैज्म. थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस हो सकता है क्या, एकदम एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ हाइपरथायराइड. हाइपरथायराइड ये कि थायरोटॉक्सिक पेशेंट जो था उसको प्रॉपर्ली अगर खुदा ना खास्ता प्रिपेयर ना किया हो, जैसे मैंने बताया उसको पहले यूथायराइड करना, यूथायराइड ना किया हो तो एकदम वो हाइपरथायराइड क्राइसिस में चला जाएगा. हाइपरपेरेक्सिया, रेस्टलेसनेस एंड डिहाइड्रेशन. ट्रीटमेंट, इसको इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, कॉर्टिसोन देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑक्सीजन देंगे, उसको हार्ट के कंट्रोल करने के लिए, एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए डायजॉक्सिन देंगे, कूलिंग ऑफ द पेशेंट, कार्बेंडाजोल, डेडोल्स, आयोडीन एंड प्रोपेनोलॉल. थायराइड इंसफिशेंसी, टोटल थायराइडेक्टमी की एकदम थायराइड जो है कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी बॉडी से, तो उसको हम रिप्लेसमेंट 150 माइक्रोग्राम्स अ डे थायरॉक्सिन देते हैं. रिकरेंस ऑफ गॉइटर, अगर हमने सब टोटल थायराइडेक्टमी की है या लोबेक्टमी की है या नियर टोटल थायराइडेक्टमी की है तो उस केस में रिकरेंस हो सकती है, एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग अ सप्रेसिव डोज ऑफ 200 या 150 माइक्रोग्राम्स ऑफ थायरॉक्सिन. इन दिस सप्रेसिव डोज हम ये करते हैं, इसके एक तीर से दो काम करते हैं. एक तो ये कि हम लोग उसके थायरॉक्सिन देकर थायराइड की कमी को पूरा करते हैं, और दूसरा सप्रेसिव डोज जो है थायराइड की वो TSH को भी सप्रेस करके रखती है कि TSH ज़्यादा ना हो, और TSH ही ज़्यादा होकर T3 T4 को जो मसला कर देता है वो भी ज़्यादा करवा देता है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखें. दिस इज़ ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. जज़ाकल्लाह खैर.